हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शीला फोम लिमिटेड के बारे में। इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस। सो बेसिकली शीला फोम इज नेशनल मार्केट लीडर इन फोम एंड मैट्रेस सेक्टर, serving consumer and institutional clients with diverse product range. It holds 30 to 35% share in Indian mattress market, leveraging strong vertical integration and manufacturing scale efficiencies. It maintains a monopoly in Indian railway supply and 70 to 75% auto OEM share driven by technical foam expertise. It has strong customer trust and a wide delivery network, which makes it hard for new rivals, keeping the company on top of direct to consumer sales. We will now look at market trends and dynamics. So, India's mattress and foam market has grown at 9% CAGR, reaching to USD $2.5 billion in financial year 2023. Consumers have more shifted towards branded, ergonomic, and premium products, driven by rising disposable income and urban housing growth. Health awareness and changing sleep habits fuel demand for orthopedic mattresses and innovative material technologies across demographics. There is a huge market exists for modernization and upgrades. Modern mattresses just cost rupees 1000 to 1500 more than traditional options, making it affordable upgrades attainable for customers. So let's see how government is supporting this sector. Production linked incentive and manufacturing subsidies help foam producer modernize plants, improve efficiency and export competitiveness. Import tariffs and GST rates on polyurethane foam affect input cost, impacting margin and pricing flexibility for manufacturers. Extended producer responsibility and sustainability mandates at compliance cost but may favor large organized sectors and large organized players over unorganized sector. In October 2023, Sheela Foam paid about rupees 300 crore to buy 35% of the company, roughly which was 6 times the company's annual sales. A year later, in October 2024, it spent another rupees 100 crore to pick up an extra 10%. It owns approximately 43 to 45% of the company now. Furlenco aims to lift direct sales from 5 to 10% to 15 to 20%, cross-selling via EBOs, showing sofas, mattresses, driving retail synergy. So EBO is nothing but जो स्टोर होते हैं वो डेडिकेटेडली फरलेंको के ही मतलब स्टोर होते हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ फरलेंको के ही मिलेंगे. Sheila Foam's investment enabled Furlenco to clear debt, lowering interest cost. Profitability was achieved by quarter 2 of financial year 2025, triggered stake hike. Kurlon acquisition. So there was also Kurlon acquisition happened in October 2023, and Sheila Foam acquired 94.66% of its stake for rupees 2,150 crore, funded via the internal accruals, equity, and debt mix. Kurlon's expertise ensures supply security and mitigates raw material cost volatility through in-house rubberized coir manufacturing. Factory closure, optimized cost, acquisition accelerated Sheela Foam's market leadership in East and South India regions. So there were some of the acquisitions which has happened in earlier 2005 also. It was the Joyce, the company which is from Australia. So Joyce acquisition in 2005 achieved rapid operational integration, drove profitability and established a strategic international manufacturing base. Spain's Interplast, so this was another company in space which was acquired. They utilized the this company and within a year, which unlocked exports to the US, Africa, and Europe region, evidencing post acquisition synergy. Management expect Interplast to benefit from global diversification as US bans Chinese product and China plus one boost European exports. So, not a complete ban has been happened with China, but the thing is like
it has some global diversification, and this will definitely benefit the company. तो अब हम देख लेते हैं शीला फोम के थोड़े फंडामेंटल्स पे और आ जाते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में. सो क्वार्टरली रिजल्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ लेट अस टेक 2 years फ्रॉम नाउ. तो प्रीवियस 2 years से अगर हम देखेंगे तो लेट अस टेक फ्रॉम मार्च 23 एंड जून 23. तो यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट ठीक ही था इनका, और मार्च 24 में आप देखोगे तो इंक्रीज भी हुआ है. और जून 2024 के बाद में लगातार कम ज़्यादा रहा है. बट अगर आप टॉप लाइन देखोगे तो सेल्स एंड रेवेन्यू जो है वो हमेशा एक इंक्रीज हुआ है, और दिसंबर 2024 में सबसे हाईएस्ट था, और फिर वहाँ से थोड़ा कम हुआ है मार्च में. अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक रेवेन्यू तो जो है, जो टॉप लाइन है, वो टॉप लाइन डेफिनेटली ग्रो हुई है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 years. और अगर आप देखोगे तो ईपीएस भी जो है वो ईपीएस का ग्रोथ भी हुआ है, सिर्फ 1 year वो कम हुआ है. उसके पीछे रीज़न भी ये है कि जहाँ जब जो आप ये प्रॉफिट देख रहे हो ना, 184 करोड़ इन मार्च 2024 एंड 97 करोड़ इन मार्च 2025. तो रीज़न भी ये है कि जो एक्विजिशंस हुए हैं, एक्विजिशंस होने के बाद में जो कैपेक्स हुआ है, जो जहाँ पे मतलब कंपनी को पैसे लगाने हैं, वहाँ पे ग्रोथ के लिए जो उन्होंने लगाए हैं, मेजोरिटी ऑफ द पैसा इज हैज़ गॉन फॉर द एक्विजिशन थिंग. और जब कंपनी का, कोई भी कंपनी का जब एक्विजिशन होता है, तो वो एक्विजिशन का भी एक पीरियड होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हमने कंपनी एक्वायर की है, अब वो कंपनी को भी एक ग्रोथ दिखानी पड़ेगी. तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके. ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे शीला फोम लिमिटेड एक चार्ट ओपन करके रखा है, और मैं चार्ट 3 months बैक का ले रहा हूँ एज पर सेबी रूल्स एंड गाइडलाइंस. सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैं एक जस्ट एक मार्किंग कर देता हूँ. अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो प्राइस है हमारा, वो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 753 पे, और लगभग वही रेंज में 2020 में भी ट्रेड कर रहा है. तो यहाँ पे हम दो चीज़ का एवेल्यूएशन कर सकते हैं. एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और एक हो गया बैलेंस शीट का. मैं आपको बैलेंस शीट का करके दिखाता हूँ. आप प्रॉफिट एंड लॉस आप खुद से भी ट्राई करना, आपको एनालिसिस करते थोड़ा आ जाएगा. एंड व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अगर जाओगे यहाँ पे फिक्स असेट में और बैलेंस शीट में जाओगे, और बैलेंस शीट में देखोगे कि फिक्स असेट जो था मार्च 2020 में, वो लगभग था 851, और मार्च 2025 में 3155 है. तो फिक्स असेट्स भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं. फिक्स असेट में इवन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकते हैं, या फिर स्टोर्स हो सकते हैं, वो उन्होंने इंक्रीज किए होंगे, वो उन्होंने परचेस किए होंगे. तो उस तरीके से मतलब इंक्रीज हुआ है, और सी डब्ल्यू आई भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे से यहाँ पे. एंड वो हिसाब से अगर कंपेयर करोगे 2020 और 2025 को, तो कंपनी अपने आप को ग्रोथ करने का पूरा ट्राई कर रही है. जैसे हमने पहले भी बात की कि एक्विजिशंस उनके काफ़ी रिसेंट रहे हैं 2023 2024 में, और डेफिनेटली एक कंपनी एक मौका देगी कि वो एक्विजिशन की हुई जो भी दोनों भी फॉर्म्स है, उसको अपना काम करने का, उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकती है. ओवरऑल स्ट्रेटजी शीला फोम को अपलिफ्ट करने के लिए वो कंपनी काफ़ी कोशिश करती है जब ऐसे एक्विजिशंस होते हैं तब. तो आप देख सकते हो कि जैसे आपने बैलेंस शीट का एनालिसिस किया, एंड अगर आप इसके पीछे भी चले जाओगे ना, तो देखोगे कि अगर 2020 के बाद में 2018 में क्या हुआ है, 2018 में फिक्स असेट जो है वो 348 करोड़ थे, और अभी आज की तारीख में देखोगे आप, तो वो लगातार मतलब इंक्रीज हुए हैं. 3155 करोड़ है. तो इट हैज़ बीन इंक्रीज. इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए हैं लगातार. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ओवरऑल प्रोग्रेस कंपनी का अच्छा ही रहा है. यहाँ पर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको ये स्टॉक परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए, लेकिन एक कोशिश रही है कि आपको थोड़ा सा फंडामेंटली समझा पाऊँ कि ये कंपनी रिसेंटली क्या कर रही है, और ये कंपनी का ओवरऑल पर्पस क्या था, और टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. बट इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है. थैंक यू सो मच. जय हिंद.